Good evening, everyone. I hope you all are doing great. Welcome you all to Getting Started with DSE Med Day 1. Today, as you all know, the topic is web development. We have with us Harshal and Atharva. They both will guide you all with how they have learned web development and how you all can give it a start, how you can make a career into it. This session would be basic introductory kind of. If in case you have any query, don't hesitate, shoot out your queries into chat section. You also can unmute yourself and just ask your queries. Okay, have a great time. Now handing over to Harshal, you can just start. Thank you, Ishu. Am I audible? Yeah, Hello. you're audible. Just go on. Hello. Okay, so hello, students. First, I introduce myself. My name is Harshal Pagar. I'm the founder and CEO of WebTech Infotech. Okay, a web development startup. I started in my second year. So let me first telling the agenda of this session. The agenda is what is web development is. Okay, most of the students from the all the faculties or all the faculties related to the technology don't know what is actually web development is. They know web designing. Okay, they think that we can create a website with a WordPress or many of the online cloud services. Okay, but the actually web development is a different thing, and that thing is very important nowadays. Okay, if you are going to any industry, okay, uh, if you are dealing with the IT and computer, okay, so you have to know the web development, what is web development. So today the agenda is I will totally introduce the web development. Okay, what is the career, what the career is in web development, how you can start, okay, from the to pro. Okay, the two things are importantly in this session will ऑलरेडी मीन्स जो भी होगा, ठीक है, मैं आपको आज जो भी बोलना हूँ वो टोटली वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड होगा. ओके, जो भी कोई पॉइंट्स है, जो भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, ओके, सो आई विल टॉक अबाउट ऑल द things. Okay, so first I start with the future opportunity in the web development. Okay, now what is actually web development? Web development is already a big domain nowadays. Okay, और अगर आप वेब डेवलपमेंट के बारे में बात करते हो तो उसमें दो थिंग्स आती है. पहले तो आती है वेब डिजाइनिंग. ओके, और दूसरी आती है वेब डेवलपमेंट. और वेब डेवलपमेंट में जो है वो वेब डिजाइनिंग ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है. ठीक है, सो अगर आपको एक वेब डिजाइनर बनना है तो आप सिर्फ उस रिलेटेड टेक्नोलॉजी सीखिए. ठीक है, अगर आपको वेब डेवलपमेंट करनी है तो आपको जो भी टेक्नोलॉजीज है वो रिलेटेड वेब डेवलपमेंट के वो सीखनी है. लेकिन क्यों सीखनी है वेब डेवलपमेंट, आपको क्यों सीखना है? ओके, आप सी प्लस प्लस, पाइथन, ओके, जावा, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो, लेकिन आपको वेब डेवलपमेंट क्यों सीखना चाहिए? इसका एक बहुत बड़ा रीजन ऐसा है कि जो भी आप एप्लीकेशंस आ रहे हैं, ओके, जो भी स्टैक टेक्नोलॉजी स्टैक यूज कर रहे हैं एप्लीकेशंस में, जैसे कि फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, so web application is more important. Okay, nowadays Android application is also important, but what I am telling is कि अगर वेब डेवलपमेंट आप लोग सीख लेते हो और अगर आपको वेब एप्लीकेशन बनाना आता है तो कंपनी आपको जल्दी से जल्दी हायर कर सकती है. ओके, आपको सी प्लस प्लस, जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विच इज यूज फॉर सॉल्विंग द actual problems. Okay, but the web application also solves the actual problem. How? Let's tell me about I will tell about something. Gmail. Okay, what the Google thinks that Gmail is a powerful uh, Gmail is a powerful single page application. Okay, where you can send a Gmail. Okay, including with the all the document types. Okay, you can send DFs or, but what the Google thinks that if we create, okay, अगर उन्होंने एंड्रॉयड ऐप पहले बनाया हो, ठीक है, तो क्या होता कि एंड्रॉयड ऐप जो है वो सब लोग एंड्रॉयड ऐप मतलब एंड्रॉयड फोन जो था वो सब लोग यूज नहीं करते थे. ठीक है, तो अगर आप वेब एप्लीकेशन बनाना सीखते हो दिस ईयर में, ओके, मैंने सीख लिया है, मैं आई कैन क्रिएट एनी वेब एप्लीकेशन नाउ. ओके,
ओके। सो अगर आप इस एज में वेब एप्लीकेशन बनाना सीख लेते हो तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर career. Okay, so what actually the web development is? Okay, there are two facts: front end development and back end development. Okay, now I will tell you. Okay, now front end development. Okay, most of the students are from computer and IT for this session. Okay, they having a subject like human computer interaction. Okay, so in human computer interaction, actually what the subject is about. Okay, आप लोग सब्जेक्ट तो सीख लोगे, लेकिन वो सब्जेक्ट आपको क्यों दिया है ये नहीं आपको मतलब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि इसका यूज क्या है। ठीक है, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट को एप्लीकेशन रिलेटेड करोगे ना तो ही आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। ओके, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं पहले बात। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट इज ऑलरेडी मतलब जो भी उसका स्कोप है वो ऑलरेडी बढ़ चुका है, और उसका स्कोप जो है इन इंडस्ट्री साइमल्टेनियसली जैसे का वैसा ही रहा है। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट की तो उसमें आता है वेब डिजाइनिंग। ओके, और मैं बोल रहा था कि ह्यूमन इंटरेक्शन ओके इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अगर आपका वेब डिजाइनिंग अच्छा होगा तो यूजर को इंटरेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा होगा कि उसको नेविगेशन अच्छा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अगर आप वेबसाइट में अगर कॉन्टैक्ट अस अबाउट पेजेस डालोगे नहीं, ठीक है, अगर उसका वहां पर कुछ प्रेजेंस ही नहीं होगा तो यूजर कैन नॉट contact with that related industry or related business. Okay, so these are the facts are present in the human computer interaction, means how the system interact with the user. Okay, through this user interface or UX. Okay, so front end development is related to web designing. Okay, and the back end means where user sends a request to a server. Okay, from server our web application or website is host। मतलब अगर आप फेसबुक यूज कर रहे हो, ठीक है, फेसबुक का जो भी सर्वर होगा, जो भी डेटाबेस होगा, वहां पर आपकी पूरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, जब आप उस सर्वर को रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे मेरा लॉगिन करना है, मुझे करना है, तो आपको सर्वर क्या करेगा, वहां से रिप्लाई भेजेगा कि हाँ आप कर सकते हो। ठीक है, बैकएंड में ये चलता है। तो बैकएंड डेवलपर कौन होता है, डेवलपमेंट क्या होती है कि जो भी बैकएंड का पार्ट होगा, जो भी सर्वर का पार्ट होगा, जो भी डेटाबेस का पार्ट होगा, ओके, और एप्लीकेशन इंटरफेस का पार्ट होगा, वो सब चले बैकएंड में। ओके, दिस पार्ट, this is actually the back end development. Now the web development is a collection of front end and back end. Okay, means first suppose if you are doing a project on a web डेवलपमेंट। ओके, अगर आप डेटाबेस का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो और आपको बोला कि यार एक ऐसा एप्लीकेशन बनाओ जिसमें जो भी कोविड के पेशेंट से उसका डेटाबेस आना चाहिए। ओके, सपोज आई एम टेलिंग अबाउट द स्टूडेंट्स हु आर परस्यूइंग देयर थर्ड ईयर नाउ। ओके, उनको अभी डेटाबेस मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट होगा। ओके, सो उनको अगर बोला कि हमें कोविड पे एक एप्लीकेशन बनाना है, उसके 4 लोगों की टीम ने डिसाइड किया कि हमें कोविड डेटाबेस बनाना है, तो व्हाट दे डू इज the first and second person are doing a work on a front end. Okay, जो भी HTML CSS JavaScript में जो भी बंदा अच्छा होगा, okay, तो ये 2 बंदे उस पे काम करेंगे। और third and fourth person if they are good in a PHP and MySQL, I'm not telling about all the technologies, I'm just saying about the PHP and MySQL. okay, तो ये दोनों उस पे काम करेंगे और साइमल्टेनियसली उसको फिर उसको जोड़ के देखेंगे कि हाँ वर्किंग हो रहा है कि नहीं। अगर इसने कुछ बनाए, ठीक है, इसने एक बटन बनाया और ये थर्ड पर्सन ने उसके जाकर बोला कि भैया तेरा बटन पे क्लिक करने के बाद जो भी होगा वो बैकएंड में जाना चाहिए, तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपका प्रोसेस वर्क इन प्रोसेस अच्छा चल रहा है। ओके, और अगर आपको प्रोजेक्ट बना तो डिवाइड एज अ टीम वर्क करो। ठीक है, जो भी आप मतलब प्रोजेक्ट बनाओगे। ओके, मैं रिगार्डिंग थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में भी थोड़ा सा बोलता हूँ। ठीक है, अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, थर्ड ईयर होगा, लास्ट ईयर होगा, एनीवेज, लेकिन आप टीम के साथ वर्क करते हुए आपका वर्क जो है डिफरेंशिएट कर लो। ठीक है, अगर किसी को बैकएंड में बहुत अच्छा आता है आपके टीम में से तो उसको बैकएंड का वर्क दे दो। ठीक है, और जिसको फ्रंट एंड आता है उसने फ्रंट एंड का वर्क ले लो। अभी इसमें क्या करना, इसमें क्या होता है पता है क्या, कि अगर आप फ्रंट एंड अच्छा सा बनाता हो, ठीक है, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट अच्छे से करते हो और बैक एंड डेवलपमेंट में थोड़ा वीक हो जाता है, अगर आपकी फंक्शनैलिटी अच्छी नहीं होगी, मतलब अगर कोई यूजर साइन अप कर रहा है और साइन इन कर रहा है
लेकिन सर्वर से उसको कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा, तो द एप्लीकेशन इज नॉट गुड, ओके, इन अ पॉइंट ऑफ यूजर इंटरफेस। अगर उसका इंटरफेस ही अच्छा नहीं होगा तो उस जो भी एप्लीकेशन है उसका कुछ फायदा नहीं होगा। और अब देखो कि ये वेब डेवलपमेंट में जब आप आते हो, ठीक है, एक वेब डिजाइनर हो गया, एक बैकएंड डेवलपमेंट हो गई। अब वेब डेवलपमेंट में आते हो ना आप, तो आपको एक वेब डेवलपमेंट में बेसिकली HTML, ओके, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप वगैरह, I'm just saying HTML, CSS, JavaScript, and after that, in for back end, you have to know PHP, okay, and the MySQL. Okay, MySQL is a good database for small web applications, and if you are wanted a very good application with database, then you have to move on MongoDB. Okay, MongoDB is a no scalable database. That's why I'm saying that you have to do that. Okay, so basically आप सिर्फ HTML, CSS, JavaScript, PHP एंड MySQL सीखना है। ओके, अभी सर्वर की बात आती है, तो सर्वर की बात में अभी देखो, आपको कोई भी प्रोजेक्ट बनाना होगा तो जो भी कंपनी में प्रोजेक्ट करते हैं तो उसको पहले लोकल सर्वर पे होस्ट किया जाता है, ठीक है। लोकल सर्वर इज अ ऑफलाइन सर्वर वेयर यू हैव टू होस्ट योर वेबसाइट, ओके, और वेब एप्लीकेशन, उस पे उसकी टेस्टिंग चलती है। उसके बाद जब आप कोई प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना चाहते हो, उसके पहले जो लाइव सर्वर होता है उस पे भी आपको काम करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप सर्वर पे टेस्टिंग नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि अपना जो भी वेब एप्लीकेशन है वो अच्छा है या नहीं। सो व्हाट द वेब डेवलपमेंट इज actually about these 5 technologies, okay, HTML, CSS, JavaScript, PHP, and MySQL. Okay, so next, move to next point. Okay, now what follow your interest. Okay, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको वेब, तो ये टोटली रॉन्ग है। अगर आपको वेब डिजाइनर अच्छे से बनना है तो आपको जो भी फोटोशॉप, जो भी UI बनाते हैं हम, यूजर इंटरफेस, अगर किसी कंपनी में कैसा काम चलता है, मैं वेब डेवलपमेंट की कंपनी में कैसा काम चलता है बताता हूँ आपको, ठीक है। तो एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है हर एक वेब डेवलपमेंट कंपनी में। पहले तो एक जो भी कंपनी होगी, जिसको भी वेबसाइट वेब एप्लीकेशन चाहिए होगी, वो प्रोजेक्ट जो होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, उससे बात करेगा कि भाई ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। उसके हिसाब से अगर आप देखो, बहुत सारी वेबसाइट जो होती है उसका अगर लोगो भी देखते हैं आप, गूगल का लोगो देखो, ओके, उसमें जैसे 4 कलर यूज किए हैं, तो थ्रू आउट द प्रोसेस उन्होंने 4 ही कलर यूज, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो। ओके, नाउ दिस इज द गुड यूजर इंटरफेस। ओके, दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है और एक प्रोटोकॉल फॉलो किया है उन्होंने कि यार इतना ही कलर हमें यूज करना है। ओके, सो अगर डिजाइनर के बारे में मैं बात करूँ ना, तो ये जो बंदा होता है ना, इसको बेसिकली HTML CSS भी आया ना, और उसके बाद फोटोशॉप, तो भी उसको एक वेब डिजाइनर हम कह सकते हैं। ओके, जावास्क्रिप्ट आना ही चाहिए ऐसा नहीं है। अगर आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं एज अ वेब डिजाइनर एंड यू कैन क्रिएट अ गुड डिजाइन फॉर देयर वेबसाइट, ओके, और उसके बाद अगर यहाँ पर वेबसाइट का डिजाइन होने के बाद इस बंदे के पास आए हो और ये बंदा बैकएंड के लिए काम कर रहा है, ओके, साइमल्टेनियसली काम करते हैं, जैसे आप प्रोजेक्ट में काम करोगे वैसे ही साइमल्टेनियसली काम करते हैं, लेकिन ये जो बंदा है ये इसको अपडेट देते रहेगा कि भाई मेरा इतना इतना हो गया, इसके लिए तो बैकएंड के लिए। अगर वेब डिजाइनर ने एक HTML का फॉर्म बना दिया, ठीक है, तो इस बंदे को वो HTML का फॉर्म लेकर उससे MySQL और PHP के साथ में बोल रहा हूँ वेब डेवलपमेंट, ओके, वेब डेवलपर, आई एम नॉट सेइंग फुल स्टैक डेवलपर। ओके, फुल स्टैक डेवलपर पे बाद में आते हैं, पहले मैं वेब स्टैक, फुल स्टैक डेवलपर जो होता है वो अलग होता है, पहले मैं वेब डेवलपर के बारे में बात करता हूँ। तो वेब डेवलपर क्या होगा कि ये जो होगा ये बैक एंड डेवलपर होगा, ये फ्रंट एंड डेवलपर होगा, ठीक है। तो आपका जो इंटरेस्ट है, जिसमें आपको अच्छा लगता है, अगर आपको थोड़ा बैक एंड में प्रॉब्लम हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है किसी चीजें चल रही है, कैसे PHP वर्क कर रहा है, MySQL का डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे हो रहा है, तो डोंट डू दैट। ओके, फॉलो योर इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट नहीं तो आप कितना भी ट्राई करो इस चीज को सीखने को, आपसे नहीं होगा। ओके, आप में उतना पोटेंशियल, जितना भी आपका पोटेंशियल, फिर इसमें क्या करना कि अगर वेब डिजाइनर बन रहे हो ना आप, तो उसमें जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है, जैसे कि HTML CSS, फिर बूटस्ट्रैप सीख लेना, ठीक है। बूटस्ट्रैप इज अ लाइब्रेरी ऑफ HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ओके, और वो जो लाइब्रेरी है उससे फिर हमको ऑटोमेटिक कोड कनेक्टिविटी करते आती है, तो यूजर इंटरफेस अच्छा हो जाता है, टाइम हो बच जाता है। तो ऐसे ऐसे चीजें सीखो। और आपको अगर बैक में बहुत इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि यार
ये जो है ये डिजाइनिंग का जो पार्ट है वो बहुत क्रिटिकल है और मुझे नहीं आएगा, मुझे बैकएंड में, तो यू कैन गो विथ दैट। ओके, सो फॉलो योर इंटरेस्ट। ओके, जो भी होगा एज अ मतलब सर आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या चीजें आती है। ओके, डोंट डोंट स्टक विद द एजुकेशन ओनली, आपको सेकंड ईयर से स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब फाइनल ईयर में कंपनीज आएगी, आपके रिज्यूम में अगर अच्छे से प्रोजेक्ट होंगे। ओके, नाउ आई एम टेलिंग अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं रिज्यूम बनाता हूँ, ओके, आई एम नॉट प्रोमोटिंग माई सेल्फ, बट अगर मैं मेरा रिज्यूम बनाता हूँ दैट आई कैन tell them that I am the founder and CEO of Webstack Infotech. Okay, I do this project. Okay, I actually I actually make these things. Okay, I take seminars on that things. Okay, I also take application of Python seminar on first year engineering of our college. Okay, so if I conclude that things in my uh, resume, then the HR of the company, okay, particular company, if I fail in my startup, then I will go to company, I apply for a job. Okay, they find my resume and just think that you are good, you can do these things. Okay, you are eligible for job. Okay, so ये जो बात है ना, ये आपके माइंड में रख लो कि आपको सेकंड ईयर से कुछ को आई एम नॉट श्योरिंग दैट सेकंड ईयर से आपको फाइनली वर्क करना है। ठीक है, आप सेकंड ईयर से बेसिक वेबसाइट पे आओ। ठीक है, थर्ड ईयर में छोटे छोटे वेब एप्लीकेशन बनाना सीखो। ठीक है, उसके बाद लास्ट ईयर में जो प्रोजेक्ट होगा वो खुद से करो। ठीक है, और जो भी आप करोगे उसका जो भी लिंक होगा वो रिज्यूमे में डालो। ठीक है, तो ये जो है मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंटरेस्ट फॉलो करो, उसमें अच्छे से बनो। ठीक है, लास्ट ईयर तक आपने कुछ अच्छे से प्रोजेक्ट किए होंगे तो आई डोंट थिंक कंपनी विल रिजेक्ट यू। ओके, कंपनी आपके प्रोजेक्ट पे ही आपको क्वेश्चन पूछेगी अगर इंटरव्यू में जाते हो तो, एज माई एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं इससे पहले थोड़ा बहुत कॉम किया है। मतलब कि मेरे जो कलीग्स है, मेरे जो मतलब मैंने जिन के साथ काम किया है उनको पता है कि कंपनी में कैसे हायरिंग होती है। ओके, आपका एप्टीट्यूड वगैरह हो गया, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द प्लेसमेंट प्रोसेस, बट आई एम सेइंग दैट क्रिएट अ स्मॉल स्मॉल फ्रॉम योर सेकेंड ईयर। ओके, फर्स्ट ईयर में आता है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन सेकेंड ईयर से अगर आप नहीं करोगे तो आपको एट द एंड ऑफ यू आर नॉट एबल टू डू अ टेक्निकल राउंड ऑफ एनी कंपनी। ओके, आपको अगर पाइथन सीखनी है तो पाइथन सीख कर, अगर आप पाइथन का कुछ एप्लीकेशन ही नहीं बना रहे हो, ठीक है, पाइथन का एप्लीकेशन यूज किया ही नहीं, अगर आपने पाइथन में कोई सॉफ्टवेयर बनाया नहीं, ओके, तो आपका पाइथन सीखने का फायदा ही नहीं। ठीक है, अगर आपको कोई टेक्निकल नॉलेज यूज करके कुछ एप्लीकेशन बेस नहीं बनाते आएगा ना, तब तक आपको कोई कंपनी पूछेगा नहीं। ओके, सो फॉलो योर इंटरेस्ट, और अगर आपको वेब बैकएंड डेवलपर बनना है तो गो विद दैट, और डिजाइनर। ओके, सो आफ्टर दिस द डेवलपर, व्हाट इज द डेवलपर? वेब डेवलपर क्या होता है? जो जिसको फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट आता है उसको बोलते हैं वेब डेवलपर। ठीक है, ये जो बंदा होगा इसे बोलेंगे हम वेब डेवलपर। और इसको बेसिकली मैंने जो बोला था HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP और MySQL, अभी इसको कौन सा टाइप का वेब डेवलपर बोलेंगे हम? PHP डेवलपर। ओके, क्योंकि इसको क्या आ रहा है कि PHP में ये बैकएंड का काम कर रहा है। ओके, और अगर आप what is the full stack developer, then this is the full stack development. Okay, these all are the technologies must know to a one full stack developer. अगर आप एक full stack developer बनना चाहते हो तो आपको इन सारी technologies, okay, these are the version controls and these are the project management tool, but these front end technologies, back end technologies, and these database you have to know. Okay, now what is the technology stack? Okay, I'm not telling learn all the things. Okay, first you have to learn something. अगर हम टेक्निकल स्टैक के बारे में बोलते हैं, अगर टेक्नोलॉजी स्टैक के बारे में बोलते हैं, ठीक है, तो अगर मैं व्हाट्सएप को लेता हूँ, ओके, व्हाट्सएप uses the Django. Okay, Django is a फ्रेमवर्क ऑफ पाइथन। ओके, तो उन्होंने क्या क्या यूज किया है उनकी टेक्नोलॉजी में, ये आपको पता होना चाहिए। आपको फेसबुक कैसे बनाया, फेसबुक पूरा PHP में बना है, तो ये जो बातें हैं वो उनको बोलते हैं टेक्निकल स्टैक। ओके, अभी आपको
प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। आईटी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स है उनको मैं बोल देता हूँ कि वो अभी प्रोजेक्ट करने वाले। ओके, सो अगर हम फ्रंट एंड बैक एंड एंड डेटाबेस पे बोल रहे हैं, ठीक है, ये तीनों चीजें, तो इसमें से देखो बेसिक स्टैक कौन सा होता है। मैंने अभी आपको बताया वेब डेवलपर का बेसिक स्टैक क्या होता है। HTML, ओके, CSS, ओके, देन जावास्क्रिप्ट। I'm not telling the jQuery, okay, HTML, HTML5, CSS3, okay. And now from back end, the web developer having the PHP, and in database they having a MySQL. Okay, this is the basic stack. Okay, basic stack used by any web developer. Okay, and when it comes to the full stack developer, अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको ये तो आना ही चाहिए भाई। ओके, फ्रंट एंड इज मस्ट। ओके, इतना सारा आएगा। इसमें अगर बूटस्ट्रैप भी ऐड कर लेते हो, बूटस्ट्रैप, ओके, बूटस्ट्रैप भी ऐड कर लेंगे तो भी चलेगा। ओके, बूटस्ट्रैप ऐड कर लो। उसके बाद अगर आप एंगुलर के कर रहे हैं, ओके, एंगुलर और नोड जेएस, ओके, अभी दो टाइप के स्टैक होते हैं। ओके, दो टाइप के स्टैक होते हैं, उसमें एक होता है मर्न स्टैक, ओके, MERN, और उसके बाद होता है मिन स्टैक। ओके, सो इनमें से होता क्या है कि मर्न में जो है वो होता है रिएक्ट जेएस यूज होता है, और मीन में होता है एंगुलर जेएस। ओके, तो इसके बारे में भी बोलूंगा मैं। तो अगर आप फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है, आप यू वांटेड टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर, जस्ट try to know all the technologies by yourself, because if you are not able to do these things, you cannot be a full stack web developer. Okay, full stack developer is a Android also, but full stack web developer I am telling, अगर आपने ये सब चीजें सीख ली, ओके, आपके लास्ट ईयर तक, ओके, अच्छे से आपको आती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि फिर इसको एप्लीकेशन बेस में यूज करना पड़ेगा। आपने अगर अच्छे से प्रोजेक्ट बना दिए, ओके, अगर आपने अच्छे से प्रोजेक्ट बना दिए ना, तो आपको 100% आपको कोई कंपनी जॉब दे सकती है। मैं आपको एक बता रहा हूँ, एक यूट्यूब पे मैंने एक सेशन देखा था एक बंदे का, जिसने फेसबुक का क्लोन बनाया था। ठीक है, मतलब पता है क्या आपको कि फेसबुक के जैसा ही भी एप्लीकेशन होगा ना, उसने बनाया था सेम एज जैसा भी था वैसा उसने बनाया। उसके बाद उसने क्या किया कि वो फेसबुक को दिखाया कि मैंने ये बनाया है। उसके बाद फेसबुक ने उसको एप्लीकेशन के लिए बोला कि आप अप्लाई करो। उसके बाद उसको फेसबुक में जॉब लगा। ठीक है, तो उसको कौन सा स्टैक आता था? मर्न स्टैक। ओके, वो रिएक्ट जेएस में वो बंदा इतना परफेक्ट था कि उसने सिर्फ 3 या 4 दिन में फेसबुक जैसा यूजर इंटरफेस और थोड़ा बहुत बैकएंड बना दिया था। तो ऐसा करते हो ना, तो आपको क्लोन बनाने के बाद एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके बारे में, यार हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे कुछ बहुत कुछ आता है। अब ये तो हो गया जॉब का। अगर आप एक स्टार्टअप खोलना चाहते हो, ठीक है, इफ यू वांटेड टू डू योर ओन स्टार्टअप, यू कैन गो विथ अ वेब डेवलपमेंट फॉर अ बेसिक सर्विस। ओके, वेब डेवलपमेंट इतनी अच्छी सर्विस है, बहुत ज्यादा क्लाइंट होते हैं, क्योंकि हर दिन में बिजनेस चालू होता है किसी का, उसको वेबसाइट लगती है। ओके, सो अगर आप ये सब चीजें सीख लेते हो, ओके, अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनते हो, तो आप यू कैन स्टार्ट विथ योर ओन स्टार्टअप एज वेल। ओके, मैंने जैसे चालू किया है, आई एम नॉट टेलिंग दैट आप पहले ही सब सर्विसेज चालू कर दो। ओके, आप जब फुल स्टैक डेवलपर बन जाओगे तो वेब डेवलपमेंट का एक सर्विस हो गया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखोगे, तो वो आ गया डिजिटल मार्केटिंग में। ओके, उसमें बहुत सारे, तो ऐसे 4 सर्विसेज करके भी आप चालू कर सकते हो। ठीक है, और अब देखो, मैं आपको एक रियल फैक्ट बताता हूँ कि आप अर्निंग कैसे कर सकते हो। ओके, फ्रीलांसर। ओके, फ्रीलांसर इज अ पर्सन हु आर गिविंग देयर टेक्नोलॉजी, और उसका जो पूरा वर्क है वो एक कंपनी के लिए करके देगा, लेकिन उसका कोई प्रॉपर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं होता। उसको सिर्फ उसका नॉलेज यूज करके उस बंदे के लिए कुछ तो सोल्यूशन बनाना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप देखो, आपके कोई कलीग होगी, आपका कोई दोस्त होगा, ओके, होगा, उसका कोई बिजनेस होगा, या आपके खुद का कोई रिलेटिव होगा, उसका कोई बिजनेस होगा। अगर आपको सिर्फ HTML, CSS एंड सॉरी HTML5, HTML एंड CSS, ओके, ये जो 3 टेक्नोलॉजी आ गई ना, तो आप अच्छे वेब डिजाइनर बन सकते। और आपको क्या करना है फिर? ये इन तीनों में यूज करके एक अच्छी
रिस्पॉन्सिव उसका स्टैटिक वेबसाइट बनाना है। ओके, स्टैटिक एंड डायनेमिक, लेकिन स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है कि उसमें कोई भी डायनेमिकली फंक्शनिंग नहीं होता है, ठीक है, उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दिखती है, इमेजेस वगैरह दिखते हैं। तो आप HTML CSS यूज करके उतना कर सकते हो, रिस्पॉन्सिव उसको बनाना है और उसके बाद एक होस्टिंग लेकर वहां पर डिप्लॉय कर देना है। तो आपका एक छोटा सा प्रोजेक्ट हो गया, आपने उस बंदे का बिजनेस के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया कि भाई जो भी आएगा आपकी वेबसाइट पे जाएगा तो उनको वो आपकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन मिलेगी। लोग आता, अब देखो सिर्फ मैंने क्या क्या सीखा, HTML, ओके, एंड CSS, ये दो टेक्नोलॉजी यूज करके, ओके, आई मेड वंस अपॉन टाइम इन, आई थिंक इन माई 11th स्टैंडर्ड, ये दोनों टेक्नोलॉजी यूज करके मैंने कुछ तो भी 5 या 10 हजार रुपए कमाए थे, ठीक है। एंड आई ब्रॉट क्रिकेट की फॉर माई सेल्फ, ओके, 5-10 हजार रुपए कुछ तो भी बनाए थे, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट, बट ये दोनों टेक्नोलॉजी यूज करके मैंने एक हमारे सिटी के पास जो भी बंदा था उसको एक छोटी सी वेबसाइट बना के दी थी। तो इन 11th स्टैंडर्ड आई स्टार्टेड अर्निंग, ओके। सो आप ये दोनों भी टेक्नोलॉजी सीख लेते हो सेकेंड ईयर में, मैं सेकेंड ईयर के बच्चों का बोल रहा हूँ, अगर ये दोनों टेक्नोलॉजी भी सीख लेते हो और किसी प्रोजेक्ट पे अगर आप काम करना शुरू कर देते हो तो यू कैन कंक्लूड इन योर रिज्यूम दैट I created this website, okay, I created this website for this client, okay. So the company who are recruiting you, they think that this man is perfect for our job, okay, related to development, okay. So अगर फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो ये बहुत चीज मैटर करती है, ओके। वर्जन कंट्रोल एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, ये जो होता है ये बातें अगर आप DSC के डेवलपमेंट में ज्वाइन करोगे तो मैं आपको पूरा वो समझाऊंगा, ठीक है। क्या होता है, उस बात होता है कि किसको ज्यादा सैलरी मिलेगी, ओके। बंदा इंजीनियरिंग में आता है, उसको लगता है कि यार मुझे जॉब चाहिए, ओके, तो लगता है कि यार मुझे अगर जॉब मिल गई मैं तो ये करूँगा वो करूँगा, मुझे इतना पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आप वेब डेवलपर, वेब डिजाइनर और फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको, अगर आप वेब डिजाइनर बनते हो तो आपको कैसे पे किया जाएगा, देखो, ओके। इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है मेरे पास, ठीक है। वन ऑफ माई रिलेटिव, वो फुल स्टैक डेवलपर है, वो काम करते थे फिलीपाइंस में, ओके। सो उन्होंने क्या किया कि वो पहले वेब डेवलपर थे उस कंपनी में और उन्होंने फुल स्टैक डेवलपर बनने का मतलब सोचा कि यार फुल स्टैक डेवलपर बन जाता हूँ मैं। तो उन्होंने फुल स्टैक सब टेक्नोलॉजी सीख ली और उस कंपनी ने फिर क्या किया कि यार इस बंदे को पूरा वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन घर से बनाते आएगा, तो इसे कंपनी में रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। उन्होंने क्या किया, यू कैन वर्क फ्रॉम होम, ओके। तब तो कोविड भी नहीं था, वो बंदा, मतलब वो जो रिलेटिव था मेरा, तो वो घर से काम कर रहा था, कंपनी उसको प्रोवाइड कर रही थी, ओके। वाईफाई का जो भी खर्चा होगा वो प्रोवाइड कर रही थी। वो 1 मंथ में या 2 मंथ में एक वेब एप्लीकेशन कंपनी के लिए बना रहा था और उसको उस कंपनी ने पर मंथ 1.5 लाख रुपीज का पर मंथ पैकेज दिया। तो देखो, अगर आप वेब डिजाइनर बनते हो तो कंपनी को, अगर एज अ कंपनी आपको वेब डिजाइनर रिक्रूटमेंट करती है, ओके, तो कंपनी को एक वेब डेवलपर भी चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनते हो तो कंपनी का लगेगा फिर सिर्फ एक बंदा है, उसके पास ये दोनों नॉलेज है, ठीक है, वेब डिजाइनिंग का भी नॉलेज है, वेब डेवलपमेंट का भी नॉलेज। आप ये सब सीख लोगे, ये दोनों एक साथ सीख लोगे और वो जो मैंने ये जो टेक्नोलॉजी बताई थी, ओके, ये जो फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, ये अगर आपको, नॉट सेइंग दैट 100% आपको सब आना चाहिए, ओके। फ्रंट एंड में आपको 90% आना चाहिए, बैक एंड में 100% आना चाहिए, ठीक है। डेटाबेस में आपको 100% आना चाहिए। वर्जन कंट्रोल तो बहुत मतलब जो भी है वो इजी थिंग है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल इज रिगार्डिंग टू दैट प्रोजेक्ट, आपको प्रोजेक्ट का जो भी डेटा होगा, प्रोजेक्ट का जो भी अपडेट होगा, जो भी स्टेटस होगा, वो कंपनी को प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे तो कंपनी को ये 2 बंदे रिक्रूट नहीं करने पड़ेंगे, ही कैन डील विद दिस ओनली, ओके। ये बंदे को हायर कर लेगा वो और उसको बोलेगा भाई तू घर पे काम कर, हम तेरे को प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स भेजते हैं, तू हमको अपडेट दे रहे हफ्ते में, ठीक है। एक दिन उसको एट द एंड ऑफ द डे उसको सब बताना पड़ेगा, ठीक है। सो आफ्टर दैट, okay, someone is asking questions, okay, let me
conclude my all the things and then I will answer you. Okay. Now, अगर आपने सेकेंड ईयर में चालू किया तो आप है नूब प्लेयर. ओके, जैसे पबजी स्टार्टिंग में ठीक है होता था. हाँ, तो आपने पबजी जैसे चालू किया, आपने अच्छे आप कम किल ले रहे हो तो आप नूब प्लेयर थे. लेकिन अगर आपको प्रो बनना है, ठीक है, तो आपको कंटिन्यूटी चाहिए आपके डोमेन में. ठीक है, कौन सा भी डोमेन होगा, अगर एंड्रॉयड होगा तो उसमें आपको हर रोज एंड्रॉयड की नई नई टेक्नोलॉजी, जो भी इनोवेशन एंड्रॉयड में है, हो रहा है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. ठीक है, और अगर आप नूब से प्रो वेब डेवलपर बनना चाहते हो या फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो, तो आपको एप्लीकेशन बेस पे ही काम करना पड़ेगा. अगर आप टेक्नोलॉजी HTML सीख लोगे, ठीक है, आप HTML सीख लोगे लेकिन उसका यूज ही नहीं करोगे. ठीक है, HTML CSS आपने सीख लिया, ठीक है, लेकिन उसको एप्लीकेशन में यूज करके, मतलब एप्लीकेशन इन द सेंस कि एक वेबसाइट बना के आपने यूज नहीं किया, और अगर ये यूज नहीं करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट तो बनेगा नहीं. ठीक है, प्रोजेक्ट नहीं बनेगा तो आप इसको रिज्यूम में आपके अपलोड नहीं कर सकते. ओके, और अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो आप यू कैन ट्राई एनीथिंग अदर थिंग्स. ओके, अगर HTML CSS आपको, अगर आप कंप्यूटर और IT में हो तो HTML CSS आपको सेकेंड ईयर में पूरा पता होना चाहिए. ओके, मुझे 11th स्टैंडर्ड में पता था, आपको सेकेंड ईयर में तो भी होना चाहिए. ओके, इस क्योंकि ये क्यों बोल रहा हूँ मैं कि आप HTML स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हो. ठीक है, तो आपको अगर नू से प्रो तक जाना है ना, तो आपको कंटिन्यूटी चाहिए. okay? रोज अगर आप 7 दिन के लिए एंगुलर JS सीख रहे हो, तो 7 दिन आपको हर एक दिन कुछ तो भी छोटा सा एक उसका प्रोग्राम करके उसका यूज क्या किया है, उसका जो एट द एंड ऑफ 7th डे यू हैव टू क्रिएट अ स्मॉल प्रोजेक्ट ऑन एंगुलर JS. ओके, फॉर योर सेल्फ ऑल्सो. ओके, सिर्फ क्रिएट करते रहो प्रोजेक्ट्स, ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट क्रिएट करो, को इंडस्ट्री में कैसे वर्क करता है ना, तो वो आपको पता चलेगा. ठीक है, और वेब डेवलपर बनना इतना भी हार्ड नहीं है. ओके, माय एक्सपीरियंस इज दैट आप वेब डेवलपर सिर्फ कितने दिन में बन सकते हो, आप 100 डेज में प्रो वेब डेवलपर बन सकते हो. लेकिन आप जब नूब से स्टार्ट डे 1 से, तो आपको डे 100 तक जो मैंने बोला था HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP बहुत अच्छे से आ जाएगा, अगर आप कंटिन्यूटी रखते हैं, अगर आप इनोवेशन करते रहोगे. PHP में कौन सा फंक्शन कब यूज होता है, जो भी आपने कर्ड ऑपरेशन होते हैं, कर्ड ऑपरेशन अब डेटाबेस वालों को पता चल जाएंगे कि क्रिएट, अपडेट, डिलीट. सो ये जो कर्ड ऑपरेशन होते हैं ये कैसे वर्क करते हैं जावास्क्रिप्ट PHP में. ओके, तो अगर आप डेली इसको करते हैं, अभी देखो मैं अभी कर्ड ऑपरेशन का बोल रहा हूँ, तो आप इसको 4 दिन में खत्म कर सकते. कैसे, मैं दिखाता हूँ. क्रिएट में क्या करोगे आप, अगर क्रिएट आपको बनाना है, ठीक है, 4 दिन बोल रहा हूँ मैं, एक दिन नहीं 4 दिन बोल रहा हूँ, कि क्रिएट का फंक्शन आपने पहले दिन सीख लिया और उस पर कुछ तो भी बना दिया. ठीक है, दिन में कुछ तो भी बना दिया. ठीक है, पहले क्या किया आपने, यूजर इंटरफेस थोड़ा सा बनाया पहले दिन, और उसमें कुछ तो भी क्रिएट का फंक्शन लिखा जावास्क्रिप्ट PHP यूज करके. ओके, और फिर वो डेटाबेस में जा रहा है. ठीक है, उसके बाद डिलीट का बनाओ. ठीक है, उसके बाद अपडेट का बनाओ. तो ऐसे करके आपको कर्ड ऑपरेशन अच्छे से पता चल जाएगा. तो उससे क्या होगा कि आप जब कंपनी में काम करोगे या खुद के लिए फ्रीलांसर काम करोगे, तो आपको पता होता है कि हाँ मैंने ये सब सीखा है, मुझे ऐसा ऐसा करना है. ठीक है, यू कैन यूज रिसोर्सेज फ्रॉम W3 स्कूल. ओके, सो ये जो होता है कि आपको, अगर आप कंपनी में जाकर डायरेक्टली विदाउट गेटिंग कोड फ्रॉम अदर वेबसाइट, यू कैन क्रिएट योर ओन फंक्शंस. ओके, अगर आपने ऐसा किया तो कंपनी में भी देखते हैं कि यार इस बंदे में कुछ तो भी है, इसको देखने की जरूरत पड़ रही है. तो नूब टू प्रो बनने के लिए आपको सिर्फ कंटिन्यूटी चाहिए, इनोवेशन करते रहो. ठीक है, इनोवेशन मतलब डिफरेंट डिफरेंट रहो. ठीक है, अगर आपको एक दिन पता चला कि यार मुझे किसी दुकानदार को एक बिलिंग एप्लीकेशन बनाना है वेब एप्लीकेशन करके, तो उसको बना दो. उससे लो कि यार हाँ मैं बना देता हूँ, उसका काम थोड़ा कम करो. तो ऐसे कर कुछ तो भी प्रोजेक्ट बनाओ जिसको आपको प्रोजेक्ट को रिज्यूम में डालते आएगा. ओके, सो अभी मैं बोल रहा हूँ कि स्टैटिक एंड डायनेमिक क्या होता है. ठीक है, स्टैटिक एंड डायनेमिक इज रिलेटेड टू द वेबसाइट. स्टैटिक, मैं आपको बोलता हूँ कि स्टैटिक क्या होगा.
कि अगर आप किसी इवेंट की वेबसाइट बना रहे हो जिसमें कोई भी आप डेटाबेस सिलेक्शन नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप एक काम करते हैं, हम ब्लॉग को कंसिडर करते हैं। अगर कोई आप ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना रहे हैं तो वो रिलेटेड होगी स्टैटिक वेबसाइट उसके, और उसमें भी अगर आप एडिट का ऑप्शन डाल रहे हैं तो ठीक है, मतलब डायरेक्टली वेबसाइट पे आपको ब्लॉग अपलोड करना और डिलीट करना, ओके, उसके कमेंट्स पढ़ना, तो वो नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ वेबसाइट बनाकर आप उसमें कुछ इंफॉर्मेशन डाल के उसको सर्वर पे होस्ट कर रहे हो, तो वो होगा स्टैटिक वेबसाइट, जिसमें कोई भी वेब डायनेमिक फंक्शनिंग नहीं होगी, उसको बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट। और उसके बाद जो आता है डायनेमिक, आप डायनामिक वेबसाइट के बारे में बोलोगे तो डायनामिक क्या होगा, जैसे कि फेसबुक हो गया, ओके, डायनामिक वेब एप्लीकेशन अगर बोल रहा हूँ तो अगर सुनो, जब फेसबुक में अगर रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, ठीक है, और रिक्वेस्ट तो दूसरे बंदे को जा रही है, एक्सेप्ट भी कर रहा है, तो ये हो गया डायनामिक, ओके, ये डायनामिक फंक्शन है, इससे कुछ तो भी बैकएंड में चल रहा है, ठीक है। जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई तो ऐड टू कार्ट हो रहा है, आपका ऑर्डर प्लेस हो रहा है, आपको कुछ तो भी रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। वेबसाइट में जो कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है उसमें अगर आप डिटेल्स फिल कर रहे हो और सेंड कर रहे हो उसको, तो आपको वहां से कोई भी ईमेल के थ्रू या वही वेबसाइट पे कोई पॉपअप मैसेज आ रहा है, तो ये जो बात रिलेटेड होती है डायनेमिक वेबसाइट की, ठीक है। तो पहले तो मैं बोला कि आप स्टैटिक वेबसाइट बनाना सीखो, ओके। मैंने भी जब स्टार्ट वेबस्टैक इन्फोटेक मेरा, तो आई स्टार्टेड क्रिएटेड वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस, देन I know that HTML CSS is relevant to me. Okay, I can create that. My first website is for is on WordPress. Okay, अलग अलग लोगों से मिलना चालू किया जब मैं सेकेंड ईयर में था, तो मैंने क्लाइंट को कैसे ढूंढा, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस बताता हूँ। उसके बाद फिर मैंने लोगों को जाके बोला कि यार ऐसा ऐसा मेरा स्टार्टअप है, आपको अगर किसी भी चीज़ की हेल्प होगी तो मैं बोलो, मैं आपको इतने कम पैसे में करके, ठीक है। तो उन्होंने मुझे क्लाइंट दिए, ठीक है, अभी मेरे पास 3 क्लाइंट है, ओके, 2 सोशल मीडिया क्लाइंट्स है, ओके। सो अगर ये अगर आप ये अगर सीख लेते हो ना यार, कि HTML CSS भी आप इस सेकंड ईयर में सीख लोगे ना, तो अभी आप मंथली 5,000 रुपये कमा सकते हो। कैसे, मैं बोलता हूँ आपको, फ्रीलांसर बनो यार। फ्रीलांसर में बहुत सारा पैसा होता है। बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं कि घर से काम करते हैं, उनको जॉब नहीं पसंद होता, वो घर से अपने नॉलेज का यूज करके किसी भी कंपनी को डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे, उसके पास जो प्रोजेक्ट होगा वो लेंगे, उनके लिए एज अ फ्रीलांसर वर्क करेंगे। सो स्टार्ट वर्किंग एज अ फ्रीलांसर, ओके। कंपनी खड़ा करना इज, it's not a joke, but I'm telling that if you work as a freelancer for second and third year, you can go with a startup of web development services, okay। और आपको सब नई सर्विसेज अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो, जैसे कि मेरा वेबस्टैक इन्फोटेक है, उसमें वेब डिजाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है, ठीक है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट है, उसके बाद ग्राफिक्स डिजाइनिंग है, और फिर हम अभी चालू करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज वेब डेवलपमेंट कंपनी में होते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो भी आप ये कर सकते हो। अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैंने क्या किया था कि इंस्टाग्राम और कैसे चलती है पता कर लिया, ठीक है, एक कोर्स कर लिया छोटा सा वेब डेवलप मतलब डिजिटल मार्केटिंग का। और एक बंदा था जो था रूरल एरिया से, उसका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था, तो उसने मुझे बोला कि यार भाई मेरे पास काम नहीं आ रहा है। माझे मैंने तर क्या किया कि गोळ्या झाल्या गोळी वाटायची कधी पण वाजवू शकतो अशी निघू हेलो, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। हेलो, हेलो, हाँ, सो कंटिन्यू, ओके। सो मैं उसको क्या बोला कि हाँ भाई, मैं तेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैंने उसका फेसबुक का पेज क्रिएट किया, ओके। पेज चला नहीं तो उसका इंस्टाग्राम फेसबुक का अकाउंट क्रिएट किया। पेज और अकाउंट डिफरेंट थिंग थे। अकाउंट क्रिएट करके मैंने जितने भी सारे लोग थे उस एरिया के, उनको रिक्वेस्ट भेजा, ओके। और मैंने ये ढूंढ के निकाला कि किन बंदों ने कितने % बंदों ने इस जगह पर कंस्ट्रक्शन के लिए सर्च किया है। तो मैंने उनका वेबसाइट का नाम, उस बंदे का नंबर वगैरह पहुंचाया। तो उसको उससे 2 कंपनी के मतलब 2 जो बंदों ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया उसको, ठीक है। तो मेरे से उसको फायदा हो तो उसने मुझे कमीशन दिया, ओके। सो अगर आप ये छोटी छोटी चीजें सीख लेते हो और आपका सेल्फ अर्निंग चालू करते हो ना, यूजिंग वेब डेवलपमेंट हो गया, कुछ भी करो आप, ओके। एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी आपको
सीखने को मिलेगा इसमें। ओके, उसका भी कल सेशन है जो रौनक पाटिल और आदित्य पेन माले लेने वाले हैं। ओके, सो सब सेशन को अटेंड रहो थ्रू आउट द दिस 3 सेशंस। ओके, एंड एट द एंड ऑफ द लास्ट आपको इंफॉर्मेशन सेशन ऑफ डेवलपर स्टूडेंट क्लब मेड भुजबल नॉलेज सिटी को भी प्रेजेंट रहना है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि हाउ द डेवलपर स्टूडेंट क्लब वर्क एक्चुअली। और मैं मेरी बात कर रहा था कि मैंने जो स्टार्टअप किया था उसमें मैंने खुद से स्टार्टअप किया, मैंने 0 इन्वेस्टमेंट किया और अभी मेरे पास इतना तो पैसा आ गया है कि मेरे कंपनी का प्रॉपर प्राइवेट लिमिटेड को जो भी रजिस्ट्रेशन होगा वो कर सकता हूँ और मेरे खुद से अच्छा स्टार्टअप चालू कर सकता हूँ लास्ट ईयर के बाद, मतलब उसको स्केल कर सकता हूँ, इतने मेरे में पोटेंशियल आ चुकी है। ओके, सो स्टार्ट विथ योर ओन। आपको नूब है आप ऐसा समझ लो। ओके, जिसको भी आता होगा, मैं भी मेरे को अभी प्रो नहीं समझता, लेकिन मैं हूँ, लेकिन समझता नहीं हूँ कि मुझे, अगर मैं समझ लूंगा कि यार मुझे सब आता है तो मैं जो है इनोवेशन और कंटिन्यूटी खो दूंगा। मेरी कंटिन्यूटी अगर निकल गई तो आई कैन नॉट टेक द अपडेटेड टेक्नोलॉजी इन माय माइंड। ओके, सो यू हैव टू लर्न दिस थिंग्स एवरी डे। ओके, अच्छा वेब डेवलपर बनने के लिए आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। ओके, नाउ कमिंग अप टू दिस क्वेश्चंस फ्रॉम प्रणव। ओके, Harshal, you are designer plus code, or we have to focus on one. हाँ, Pranav, look, as I said that HTML, CSS and JavaScript is used for the basic front end development. Okay, so अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखना है तो पहले तो क्या करो कि फ्रंट डेवलपमेंट सीख लो, ठीक है, बेसिकली, क्योंकि फ्रंट एंड के जो कोड होगा ना उसमें बहुत चेंजेस आने वाले हैं बैकएंड की वजह से। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट बेसिक सीख लो। ओके, ये बेसिक है वेब डिजाइनिंग के। उसके बाद क्या करना है आपको, जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है, अगर आपने एक वेबसाइट बनाया, आपका खुद का पोर्टफोलियो वेबसाइट, ओके, खुद का पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाया, ठीक है, तो आपने HTML लिया, CSS लिया, जावास्क्रिप्ट लिया, ठीक है, आपको आ गया, आपने क्या किया, इन तीनों को लेकर एक वेबसाइट बना दिया आपके खुद का। हाँ, और उसके बाद आपने उसको एक सर्वर पे होस्ट किया, ठीक है, और अगर आपको उसमें आपका कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म डालना है, ओके, आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट, मैं आपको कभी भी थेरोटिकली नहीं पढ़ाऊंगा। ओके, जब भी मैं बोलूंगा आपको कि कैसे वर्क होती है, अगर आपने एक कॉन्टैक्ट फॉर्म इसमें से बना लिया है तीनों को यूज करके, और अगर आपको उस कॉन्टैक्ट फॉर्म में जो भी यूजर आपके वेबसाइट में, प्रणव, आपके जो भी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है उसका अगर डेटा आपको लेना है तो यूज करना पड़ेगा बेसिकली PHP यानी MySQL। ओके, सो जब आपको नीड होगी कि यार हाँ मैंने ये सब सीख लिया, इसको आप दो, मैं बोलूंगा 15 to 20 days। ओके, उसके बाद ये परफेक्ट होने के बाद इस पे प्रोजेक्ट बनाना शुरू करो। ओके, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाओ फ्रंट एंड के। ओके, तो आपको एक क्या हो जाएगा पता है क्या, कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार मैं अब एक अच्छा सा वेब डिजाइनर बन चुका हूँ। आई कैन अप्लाई एनी वन कंपनी, कि आप मैं किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, अगर आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आता है तो, ठीक है, और बूटस्ट्रैप भी बहुत इजी है, वो भी आप सीख लिया तो अच्छा है। और जब बैकएंड के लिए जाओगे ना, तो इस डिजाइनिंग का कोड होगा ना पूरे, उसमें बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, मतलब जो भी .html होगा वो .php में बदल जाएगा, ठीक है, तो ये चेंजेस भी आपको करते आनी चाहिए। तो पहले क्या करो कि पहले तो फ्रंट एंड सीख लो। ओके, 15 to 20 days में हो जाएगा आपका। उसके बाद जब बैक एंड के लिए जाओगे आप, ठीक है, बैक एंड के लिए जाते वक्त थोड़ा सा ज्यादा टाइम दो। ओके, और जो आपने फ्रंट एंड के लिए एप्लीकेशन बनाया ना उस पे ही काम करना शुरू करो, मतलब उसमें ही चेंजेस करना शुरू करो, इसकी कॉपी बना लेना। ओके, ये होगा फ्रंट एंड का। और अगर उसमें बैक एंड डालना है, जैसे कि एक फॉर्म हो गया, तो फॉर्म कैसा सबमिट होता है PHP MySQL में, तो वो समझ लो, ठीक है, तो वो आ गया बैक एंड। ओके, तो बैक एंड के लिए पहले तो PHP और MySQL सीखो। ओके, और जब आपको ये आज टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से आ जाएगी कि यार अब मैं कोई भी वेब एप्लीकेशन बना सकूंगा, ठीक है, कोई भी वेब एप्लीकेशन, तो आपको ना है फिर वो दो जो स्टैक बताए थे मैंने, मीन एंड मर्न। ठीक है, सो पहले तो बेसिक सीख लो, ठीक है, उसके बाद थोड़ा लेवल को अपग्रेड करो, क्योंकि आप अभी नूब हो, मैं क्या बोलूंगा, नूब हो, आपको कुछ भी नहीं आता ऐसा समझो, और आप डेली कुछ भी अपडेट करते रहो, और जो भी अपडेट करोगे उसको एप्लीकेशन बेस्ड ही अपडेट करना है। सिर्फ सीख के कुछ फायदा नहीं होगा। अगर आपने फल सीख लिया और फिर आपने बोला कि यार हाँ चलो हो गया यार,
HTML तो सीख लिया, लेकिन उसको अगर HTML का यूज करके आपने कुछ बनाया ही नहीं, ठीक है, तो आपको उस पे हाथ कैसे साफ होगा भाई? तो अगर कंपनी ने बोला कि यार हाँ HTML तो सीख लिया, अपन HTML यूज करके क्या किया तूने, तो आप क्या बोलेगे? हाँ मैंने सर ऐसा वैसा कोड किया था, सर बोला था, हाँ मेरे कंप्यूटर में है, हाँ मेरे पास अभी कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसे जो प्रोजेक्ट बना के ना उसका लिंक भी डाल के रखना है, उसके ड्राइव में डालो, कहाँ पर भी डालो, उनको सिर्फ कोड लगता है। ओके, मोस्ट ऑफ दी कंपनीज अगर लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट होगा तो उसका भी आपको लिंक डालना है प्रोजेक्ट के सोर्स कोड का। ओके, सो पहले तो फ्रंट एंड का दिमाग में रख के चलो। ओके, फ्रंट एंड सीखते तो वर्डप्रेस भी सीख लो। ओके, क्योंकि वर्डप्रेस भी बहुत अच्छा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ओके, सो वो सीख लो, फिर बैक एंड पे आओ, और फ्रंट बैक एंड पे आते वक्त ये जो फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट है ना, इन पे एंड का अप्लाई करो। मतलब अगर एक कंपनी का वेबसाइट है, वेब डेवलपमेंट कंपनी का, उसको क्या चाहिएगा? फिर कॉन्टेक्ट फॉर्म चाहिएगा, तो बैक एंड यूज करके उसको कॉन्टेक्ट फॉर्म भी बना दो। तो ऐसे सब चीजें चलती है। तो पहले तो बेसिक पे ध्यान दो फ्रंट एंड पे, फिर डेटाबेस तो आपका साइमल्टेनियसली चलेगा ही, कि डेटाबेस में एक्चुअली क्यूरीज कैसे हैंडल की जाती है, उसके बाद डेटा कैसा रिट्राइव किया जाता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का नहीं होगा कि यार एक्चुअली वेब एप्लीकेशन बनते कैसे हैं। तो हाँ, मैं आपको अभी बोल रहा हूँ कि अगर आप ये सेशन को बंद करोगे इसके बाद, तो डायरेक्ट गूगल पे जाओ, ठीक है, और उसके बाद हर एक जो भी एप्लीकेशन आपको पता है जिसको आप डेली लाइफ में यूज करते हो, तो उस एप्लीकेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी स्टैक यूज किया गया है वो पता करो। ठीक है, अगर आपको गूगल में जाना है, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको गूगल में जाना है और आपने गूगल सर्च इंजन जैसा कुछ तो भी थोड़ा बहुत बना दिया, ठीक है, और उसको प्रोजेक्ट में डाल दिया, ओके, एक्सपीरियंस लगता है गूगल डेवलपर को, ओके, गूगल में जॉब करने के लिए एक्सपीरियंस लगेगा। लेकिन अगर उनको आपका प्रोजेक्ट दिखाई दिया कि यार इस बंदे ने गूगल जैसा ही कुछ तो भी प्रोजेक्ट बनाया है, गूगल का क्लोन आपने बना दिया, तो वो क्या सोचेगा कि यार अगर ये गूगल का क्लोन बना सकता है तो ये बंदा कल के लिए काम करने के लिए अच्छा है। ठीक है, तो ये सब बातें बहुत मैटर करती है। सो स्टार्ट विद द नूब, first learn front end and then back end. Along with that, simultaneously learn the database uh, every day. Okay, so sir, Pranav, hello, 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 Pranav is Yes, there? Harshit. Yes, yes. Yes. Okay, okay, thank you. So please take a lecture on Python. Oh, actually I'm a Python, मतलब मला एवढं पायथॉन येत नाही, 50% पायथॉन येतं. बट तुम्ही DSC क्लबला जॉईन झाले ना, तर मी तुम्हाला वेब डेव्हलपमेंट शिकवेल. ओके, सो नक्की तुम्ही पुढचे 2 दिवस पण सगळे जे काही असतील सेशन्स ते अटेंड करा. ओके, आणि त्याच्यानंतर जे सॅटर्डेला होणारे डेव्हलपर स्टुडंट क्लबचं इंट्रोडक्शन ते पण अटेंड करा, कारण की खूप इम्पॉर्टंट आहे. जोपर्यंत तुम्ही ऍप्लिकेशन बेसवरती काम करत नाही तोपर्यंत तुम्हाला इंडस्ट्रीमध्ये काय चालतं हे कळणार नाही. ओके, नाव माय कलिग इज हिअर, मिस्टर अथर्व निकम. ओके, सो तो तुम्हाला आता त्याच्या स्टार्टअप बद्दल सांगणार आहे. ओके, इन 3rd इयर कम्प्युटर ब्रांच. ओके, तो त्यांनी नाही का द कॅट पॉइंट हा एक स्टार्टअप चालू केलेला आहे. सो ओव्हर टू अथर्व निकम. Hello guys, I'm hello Harsh. Am I audible? Yes, 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 sir. go ahead. Hello. Yeah, Atharva. Yes, yes. Hello guys, I'm Atharva Nikam, second web development lead of DSC Met IOE Nashik. Basically, I am a web developer and I have developed many sites as a freelancer with my friend Atharva Sangre, who is from IT. And I am also a developer for a startup called Veggies Point. Veggies Point is a basically vegetable delivery startup. I started with my brothers, and when I all decided to start Veggies Point, we were lagging in budget, so we just developed a basic e-commerce site using Wix Web Builder. It was just in 350 rupees. Now, as we are making good profit from Veggies Point, now so we are developing a multi-vendor site, e-commerce site where farmers and retailers can join and sell their goods with us. Now we have decided also to provide free digital marketing for the retailers and farmers who are going to join us. So as you all DSC member, I hope
we can help you with web development as a community, and we all gonna learn new things from each other and helping others to resolve errors as we are facing or we are going to face while web development. And I'm sure we are all going to have great fun in this journey, and I will show you how to optimize cost while making a website and creating your own hostings on your own. Thank you so much. Okay, thank you, Atharva. One more question is from Dhruman Das. Okay, is cloud computing related to web development? Dhruman, actually, the cloud computing is a thing where you can host your website. Okay, as like AWS is a cloud computing platform where you can host your website. Okay, so you have cloud computing as well for a while. Okay, उसके बाद जब दूसरा कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म आता है जैसे कि ड्राइव हो गया, गूगल ड्राइव है, वहां पर भी वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, तो वो भी हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना है ना नाउ डेज, ओके, तो अगर आप मतलब आई एम नॉट रिलेटेड विद द क्लाउड कंप्यूटिंग, मुझे पूरा पता नहीं, लेकिन अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग का थोड़ा बहुत सीख लोगे कि उस पर वेबसाइट कैसे होस्ट कर सकते हैं, सो हाँ परसेंटेज रिलेटेड है वेब डेवलपमेंट के, लेकिन सिर्फ होस्टिंग के बारे में है। होस्टिंग क्या होती है कि सर्वर होता है, उस पर हम अपनी वेबसाइट देते हैं, ठीक है। और क्लाउड क्या होता है कि ऐसा एक सर्वर बनाया जाता है कंपनी के थ्रू, जैसे कि AWS ने बनाया है, कि वहां पर आप बहुत सारे सर्विस कर सकते हैं। आप जैसे कि ड्राइव पर अपना डेटा रख सकते हो, उसका लिंक शेयर कर सकते हो, तो आपको मोबाइल का स्पेस नहीं यूज करना होता है। वहां पर जो सर्वर का जो डेटा रहता है वो आपको यूज करना पड़ता है। तो हाँ, आपको अगर लगता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर मुझे जाना है तो जा सकते हो, इट्स गुड फॉर यू। ओके, सो करो, ठीक है, काम करते रहो, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑल्सो गुड। और DSC के जो सब लीड्स हैं हमारे, उनको बहुत अच्छे से नॉलेज है। आपको पता चल गया होगा कि आपने जब उनका पोर्टफोलियो भी जाके देख सकते हो आप, उनको भी अच्छे से नॉलेज है, क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन बेस पे काम किया है, इसलिए वो आज DSC के पूरे टीम के कोर टीम में काम कर रहे हैं। तो स्टार्ट विथ योर ओन डेवलपिंग। ओके, अच्छे से डेवलपर बनो, आपका कुछ का माइंड का यूज करो। ओके, हाँ, यस सिद्धार्थ, आस्क क्वेश्चन। यस यस, हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ, यस। फर्स्ट ईयर का हमारा एक प्रोजेक्ट था, PBL का ही था, वो छोटा सा था, लेकिन हमने उसमें क्या किया था, वेब डेवलपमेंट में ही था। तो उसमें एक हमने ऐड किया था कि डेटाबेस लिंकिंग करना था। तो उसमें क्या हुआ, जब हाँ हमने XAMPP यूज किया था, तो जब हम लोकल होस्ट, हाँ जब हम C ड्राइव पे पहले करते, तो लोकल होस्ट सब लिंक हो गया बराबर। हाँ फिर मैंने क्या किया, वो जो हाँ गिटहब है ना, उसमें मैंने अपलोड किया। तो अब क्या हो रहा हाँ है, हाँ, जो डेटाबेस है ना, वो गिटहब पे लिंक नहीं हो रहा है XAMPP के साथ। तो वो मुझे एरर दे रहा है, 405 एरर। हाँ, तो वो कुछ, सुनो सुनो, हाँ सुनो, हाँ हाँ, मैं बताता हूँ आपको। आप जब कोई भी प्रोजेक्ट करते हो ना, ठीक है, ये वर्जन कंट्रोल हो गया गिटहब, उस पर डायरेक्टली मत जाओ, ठीक है। पहले तो आपके लोकल होस्ट पे को रन करो प्रॉपरली, ओके, क्योंकि अगर आपके लोकल होस्ट पे वो रन नहीं होगा ना, तो आप कितना भी अच्छा ऑनलाइन लाइव सर्वर या वर्जन कंट्रोल पे जाओ, अगर उस पे उसको लिंक करते हो ना, तो नहीं होगा रन, क्योंकि उसके फंक्शनैलिटी में कुछ तो भी प्रॉब्लम है। उसके पहले लोकल होस्ट पे उसको लोकल होस्ट पे पहले रन करो, ठीक है। लोकल होस्ट में अगर वो अच्छे से आउटपुट दे रहा, क्योंकि हम कोडिंग में देखते हैं कि बहुत सारे टाइप के एरर होते हैं सिद्धार्थ, जैसे कि लॉजिकल एरर हो गया, फिर रन टाइम एरर हो गया, और उसके बाद सिंटैक्स एरर हो गया। तो अगर लॉजिकल एरर होगा तो काम नहीं करेगा, सिंटैक्स एरर होगा तो भी नहीं काम करेगा, ठीक है। तो ये पहले ढूंढ के निकालो कि कहाँ पर आपके PHP में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है का। हाँ, अगर आपके PHP में कुछ प्रॉब्लम नहीं, अगर प्रोजेक्ट लोकल सर्वर पे अच्छे से चल रहा है, देन हाउ टू हाँ, गो विथ लाइव सर्वर और अनदर थिंग। लोकल लोकल होस्ट पे हाँ हाँ पूरा वर्क हो रहा है, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ओके ओके, जस्ट लेट मी नो की मी इथं तुला फक्त I can give my number to you and you can tell me the problem, I will solve for you. Okay, ओके ओके ओके, थैंक यू। okay, thank you. आणि I Ditansh also was asking to Atharva Nikam that what is stuck at point, can Atharva explain? Hello.
हाँ Stuck at point is a basically of my. अथर्व तुझा Okay, okay. अथर्व तुझा आवाज इको होतोय. Hello, now? Okay. Hello. हा बोल अथर्व बोल. हा बोल. Stuck at point is basically a freelancing website, which is my portfolio, stuckatpoint.com, where students means the businessmen or anyone, if any have requirement, they can post over there and they can contact me with it. ओके द थिंग इज की अथर्वनी सेकंड इयर मध्ये चालू केलंय. ओके त्याचा स्टार्टअप आहे, तो अर्न करतोय काहीतरी. ओके सेल्फ डिपेंडेंट झालाय, त्याचे 2 स्टार्टअप आहेत. ओके आणि तुम्हाला टेक्नॉलॉजी यायलाच पाहिजे असं पण काही नाही म्हणत मी. ओके जर टेक्नॉलॉजी नसेल येत तर खूप सारे क्लाउड प्लॅटफॉर्म आहे जिथे तुम्ही वेबसाईट बनवू शकता. ओके खूप सारे ड्रॅग अँड ड्रॉप टूल्स आहेत, तिथे पण तुम्ही वेबसाईट बनवू शकता. तर आधी नाही का सर्वात पहिली वेबसाईट आपल्या जीवनात पोर्टफोलिओ वेबसाईट. ओके जसं तुम्ही रिझ्यूम बनवतात तसं पोर्टफोलिओ वेबसाईट बनवा. ओके तुमचं नाव गाव पत्ता बित्ता सगळं टाका त्याच्यात, सर्व्हरला होस्ट करा. ओके सो आपको क्या हो जाएगा कि हाँ मैं बेसिक वेबसाइट बना लिया ऐसा. What should be okay? Next question is Krutik Patel. What should be the speed of internet if I am using my computer as a server? Look, the creation of a server is not a joke, Krutik. If you are using your computer as a server, you cannot access a website on it. Okay, आप सर्वर आपको क्रिएट करना है, इसके लिए आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजीज यूज करनी पड़ेगी, नेटवर्किंग का पार्ट यूज करना पड़ेगा, नेम सर्वर्स बनाने पड़ेंगे. ठीक है, उसके बाद डोमेन को कनेक्शन करना पड़ेगा, आपकी वेबसाइट को उसको होस्ट करना चाहिए. ओके और अगर आपका लैपटॉप, अगर आप मैं बोलूँ कि आप जीबी का, ठीक है उस पर रैम है 4 GB की, उसके हार्ड डिस्क से 1 TB की, तो अगर 1 TB तक का जो अगर कोई मतलब 1 TB तक के लड़के, अगर मतलब 100 लड़के आपके वेबसाइट पे विजिट मार रहे हैं कंप्यूटर के सर्वर पर, ठीक है बाहर से, तो आपका कंप्यूटर पर अगर कोई वेबसाइट आपका क्रैश होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये इतने तक ही कंपेटेबल है. ओके इंटरनेट स्पीड डजंट मैटर, क्योंकि आप कौन से भी इंटरनेट स्पीड से आप वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन जो आपका कंप्यूटर होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा मैटर करता है आपका स्पेस. ओके अगर आपका स्पेस अच्छे से होगा और अगर आपका बैंडविड्थ उस होगा, ठीक है तो पहले स्पेस पे ध्यान दो, उसके बाद आप इंटरनेट स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हो. और होस्टिंग में कैसा होता है कि अगर आप कोई भी क्लाउड होस्टिंग लेते हो, जैसे कि होस्टिंजर हो गया या होस्टगेटर हो गया, तो वहां पर आपको स्पीड दिया होता है, ठीक है 100 GB बैंडविड्थ ये. ओके तो वहां पर आपको अभी बहुत सारे वेबसाइट पे मतलब बहुत सारी वेब होस्टिंग पे दिया होता है कि हाँ इतने बंदे तक का वेबसाइट आपका अच्छा चल सकता है. ठीक है तो पहले वेब स्पेस करो, उसके हिसाब से आपका इंटरनेट स्पीड रहेगा. वी कैन नॉट से दैट अगर 100 GB बैंडविड्थ आपके कंप्यूटर में उसको एक्सेस करने के लिए 1000 लोगों को बता दिया, और ठीक है तो आपका वेबसाइट क्रैश होने के चांस हो जाते हैं. तो पहले स्पेस पे ध्यान दो, स्पेस अच्छे से आपका वेबसाइट का होगा, then you have to know the automatically आपको पता चल जाएगा कि आप what should be minimum RAM. ओके RAM is a random access memory. ओके अगर आप सर्वर बनाना चाहते हो ना भाई, तो आपको हार्ड डिस्क पे काम करना है भाई साहब. ठीक रैम का कुछ मैटर नहीं करेगा. ठीक है हार्ड डिस्क क्या होती है यार, सर्वर क्या होता है कि सर्वर में आपको मैं सर्वर का फोटो भेजूंगा कृतिक. ओके जैसा पीसी रहता ना उसका मैं फोटो भेजूंगा और एक वीडियो भी भेजता हूँ, मेरे पास वीडियो भी है. तो सर्वर पे क्या क्या होता है ना वो आपको पता चल, पीसी ही रहेगा लेकिन उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो ज्यादा से ज्यादा होगा हार्ड डिस्क पे. ओके आपके कंप्यूटर का और आपके लैपटॉप का जो भी रैम है, अगर आपका रैम आप क्योंकि 4 GB रैम है, तो रैम क्यों रहता है कि अगर आप कोई भी 6 GB का गेम उसमें खेल रहे हो, ठीक है अगर मैं रैम को कंसिडर करूँ तो 6 GB तक गेम 4 GB के रैम में अच्छे से चल जाएगा, लेकिन 2 GB का अगर 4 GB के रैम में खेल रहे हो आप, तो वो जो आउटपुट मिलेगा आपको 2 GB के गेम का, तो वो बहुत अच्छा मिलेगा. सो दिस इज द रैम. ओके एंड डिस्क इज रिलेटेड टू स्टोरेज, और आपका वेबसाइट स्टोरेज पे होस्ट होता है. ठीक है और आपको होस्टिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा पर्टिकुलर. ओके हैव यू गॉट योर आंसर प्रतीक? ओके एनी क्वेश्चंस मोर?
But Okay. what type of security we should provide to our website or server? अरे हे बघ, ओके ओके ओके, नाउ सिक्योरिटी इज ऑल रिलेटेड टू सिक्योर सॉकेट लेयर. ओके, अगर आप वेबसाइट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है तो उसमें आता है SSL. ओके, सॉकेट लेयर. तू कधी बघितलंयस का वेबसाईट वरती लॉकचं ऑप्शन असतं बघ, ग्रीन कलर मध्ये? ओके, सो ते असतं सिक्युअर सॉकेट लेअर. ओके, ते सर्टिफिकेट असतं जे आपल्याला होस्टिंग कंपनी प्रोव्हाइड करत असते. ओके, आणि जर तुला स्वतःहून जर तुझ्या वेबसाईटला तुझ्या सर्व्हरवरती करायचं असेल तर तुला परत तिथे नेटवर्किंग आलं, परत तिथे कोडिंग करावं लागेल, आणि त्याची पण माझ्याकडे एक PDF पडलेली आहे, मी तुला ती पण. सो ते तुला प्रोव्हाइड करावं लागेल सिक्युअर सॉकेट लेअर. तो ते का असतं माहितीये का? जर युजर आणि क्लायंट जर कम्युनिकेशन होत आहे, ओके, जर SSL नी जर आपण तिला एन्क्रिप्ट केलं, ओके, सो काय होईल की जो मधला माणूस असेल, जर समजा तिसरा जण तुझी वेबसाईट ऍक्सेस करायला पाहतोय अनऑथोराइज वेने, ओके, त्याला म्हणतात हॅकर. ओके, तर तो बघतोय ना, तर तुझा जो डेटा असेल वेबसाईटवर, तुझं जर नाव समजा तू वेबसाईटला टाकेलं असेल कृतिक पाटील, ओके, आणि तुझा बँक अकाउंट नंबर तुझ्या वेबसाईटला असेल, सो त्या पर्सनला तो इन्क्रिप्टेड वे मध्ये दिसेल. ओके, डिफरंट अल्गोरिदम यूज करून त्याला दाखवलं जातं. ओके, आणि समजा तू तुझ्या वेबसाईटमध्ये कार्ड पेमेंट ऍक्सेप्ट करतोय, ओके, जर तुझ्या वेबसाईटला SSL असेल सिक्युअर सॉकेट लेअर, तर ते जे काही डेटा असतो, ओके, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तर तो पण आपल्याला एन्क्रिप्ट करता येतो युझिंग SSL. ओके, आणि ते सुद्धा तुला तुझ्या कम्प्युटरवरती तुझ्या सर्व्हरला करता येतं. बट ते खूप गोष्ट आहे. ओके, सो जर तुला ते म्हणजे तुला मी त्याच्याबद्दल पूर्ण माहिती तुझ्या व्हॉट्सअप नंबरला सेंड करेल. ओके, तुझं नाव, माझा नंबर मी आता इथं लिहून देतो. ओके, सो व्हॉट्सअपला काही क्युरी असतील, आता जर क्युरी असतील तर लगेच विचारा. सो मी तुला तुझं पूर्ण सोल्युशन तुला पाठवतो मी. ओके, ओके, आय थिंक नीड टू we have to end now. Okay. Guys, if you have any questions, please drop it into the chat section or you can just ask it. In case you have any question, please ask. And before we conclude, I would just ask you, I would just request you all to please fill the feedback form. It would hardly take a minute from you all. Please kindly fill the form without fail, and just submit your genuine responses. Genuine responses are highly appreciated. And I would just like to summarize the entire session. This session was not entirely going to give you exact idea what like exactly what will be into web development, but yeah, of course it will just give you an overview of what web development is. And as a computer engineering student or IT student, or as a student who is interested into technology, you need to have knowledge about web development. So web development एक ऐसा डोमेन है जिसको आपको कभी ना कभी लाइफ में फेस करना ही है. एंड वेब डेवलपमेंट एज कम्पेयर टू अदर टेक्नोलॉजीज काफी सिंपल है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए. एंड कंफ्यूजन बहुत सारे हैं, बहुत सारे छोटी छोटी डाउट्स हैं, बहुत सारे जो भी डाउट्स थे आपके, सम ऑफ द डाउट्स आर बीइंग आंसर्ड. कुछ अगर आपको इसके अलावा भी डाउट्स है, यू कैन रीच आउट टू हर्षल, अथर्व और एनी DSE मेंबर इनटू द कोर टीम पर्सनली एज वेल. सबके नंबर, सबके email IDs would be shared to you all. And I would also request you all to stay tuned, because tomorrow we will be having sessions, and even day after tomorrow we will be having sessions. Details of the speaker, details of the topic would be shared on the group shortly. And one more request from my side is, if you all are joining the session, please make sure you are making best out of it, because आप अपना time दे रहे हो, internet भी waste कर रहे हो. But of course, so please ध्यान देकर सुनो. अगर कुछ questions है, please ask. Here no any faculty is involved. This is a forum, or I would say this is a community by the students and for the students. यहाँ पे we will also be having many guest lecturers, but we have two specialists with us, like Atharva and Harshal. I would also like to thank both of them for such a wonderful session, and I hope you all had good time. In case you have any question, you can reach out to them personally, and even in the chat section right now. We will wait for 5 more minutes for your questions if they are coming at all. And please make sure to fill the feedback form without fail. Thank you, everyone. आय थिंक वन रिक्वेस्ट आली की व्हॉट्सअपला ते रेकॉर्डिंग पाठवा. ओके, निशू ते ड्राईव्हला टाकणार आहेत का आपण?
See guys, recording का scene ऐसा है कि we are having a dedicated YouTube channel for our DSC Met 2020. So all the lectures, जो भी lectures होंगे, जो भी seminars या workshops होंगे, सारी recordings YouTube channel पे available होगी. So don't worry for that. You can always have a look at the recordings into the YouTube gallery or whatever section. We'll send the Okay, and just follow the Instagram account. Okay, YouTube channel link on the WhatsApp group. Drop your queries. If any queries, please drop. Okay. येस अरे कधी पण विचारा, माझा नंबर आहे बघा, मी नंबर दिलाय तुम्हाला. ओके, सो डाउन करून घ्या आणि व्हॉट्सअपला मेसेज करा कधी पण. जस्ट कृतिक अँड कृतिकची जी क्युरी होती आणि अजून कोणाची होती, हा. सो कृतिक, तू तुझं क्युरी जे असेल ते व्हॉट्सअपला मला मेसेज कर, सो मी तुझ्याशी इंटरॅक्ट करतो. ओके. अजून एक कोणी प्रश्न विचारलेला आहे, प्रणव शर्मा. ओके, किती इन्कम येतो वेबसाईटने? ओके, सो ऍक्च्युली ना, तू जर समजा वेब डेव्हलपर आहे, ओके, समजा तू वेब डिझायनर आहे ना, तर तू एखाद्या छोट्याशा स्मॉल स्टार्टअप जो असेल वेब डेव्हलपमेंटचा, त्याच्याशी टाईप करू शकतो आणि त्यांना तू सांगू शकतो